आज का जो इवेंट था वो नॉन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एंटिटीज़ ਜਿਹੜੇ छोटे बिजनेस इवेंट्स ने ਜਿਹੜੇ नॉन कॉर्पोरेट्स ने मीनस प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म्स ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨਵਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਦੈਟ ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬਿਲਡ ਅਪ ਫॉर ਨॉन ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੋਟਸ ਨੇ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਅੱਜ NIRC ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ all the team members of the regional councils are here and ਲੁਧਿਆਣਾ branch ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲਿਸਿਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ and they are here ਸਰ GST ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ GSTR ਔਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਉਹਦੀ GST ਰਿਟਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਪੰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ICAI ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ ICAI ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ICAI ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕਮੈਂਟਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਡਰਾਫਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਉਹ ਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੂਸਰਾ ਕਿ AI ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰ ਜੀ AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ GST ਅਪੀਲਸ ਵਰਕ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ AI ਬੇਸਡ ਟੂਲਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ ਹੈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ मोर एफिशिएंटली और कट टाइम से हो रहा है। मैं पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक एसेंशियल प्रोग्राम्स में से है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के तहत किया गया विद द पोस्टिंग ऑफ द लुधियाना ब्रांच अंडर द लीडरशिप ऑफ विकास। मैं बताना चाहूँगा आज जो हमारा प्रोफेशन इवॉल्व कर रहा है टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द मेन टाइम व्हेन वी अडॉप्ट दिस थिंग। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो सुझाव आए जैसे सुझाव आए कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की तरफ और हम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में जा सकते हैं और अब हम पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग से पार्टनर इन ग्लोबल बिल्डिंग में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये सब सुझावों को मैं यहाँ से ले जाकर एक रीजनल काउंसिल में रख के हम इनको आगे सेंटर काउंसिल तक पहुँचा के गवर्नमेंट तक माध्यम से और अपने प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करते हुए आगे लेके जाएंगे। सर MSME को लेकर किस तरह देते हैं कि जो MSME के लिए भी कुछ आपने इनके साथ कोई सुझाव साझा किया? सर MSME आज की डेट में हमारे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है और मैं कहूँगा हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इवोल्यूशन पॉइंट भी है। आज अगर हम MSME की बात करें तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन चल रही है उस तरीके से MSME को गवर्नमेंट की सपोर्ट और गवर्नमेंट के लिए एक रास्ता दिखाना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसमें एक माध्यम बनते हैं और बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मुझे नहीं लगता कि MSME भी कहीं ना कहीं आगे जा पाएंगे। और MSME को आगे पहुंचाने के लिए जो हम रोल अदा कर सकते हैं वो हम सारे मिलकर यूनाइटेडली चल रहे हैं सो दैट नॉट ओनली वी प्रोग्रेस बट द नेशन प्रोग्रेस एंड द MSME इन टर्न प्रोग्रेस। सर कितने परसेंट के लोग हैं अब CA बनने की तादाद में आगे आ रहे हैं? अगर हम बात करें कि CA बनने के लिए अब एक अलग ट्रेंड चालू हो गया है कि CA प्रोफेशन में लोग वापस आके फिर से चार्ट अकाउंटेंट बन के इस देश के लिए फाइनेंशियल सोल्जर बनना चाहते हैं। क्योंकि पता है कि हम ही फाइनेंशियल बैंड हैं आगे जो इकोनॉमी को आगे ले जा रहे हैं। और मैं कहूँगा परसेंटेज की बात तो नहीं बट मैं कहूँगा मैक्सिमम पेरेंट्स से जब हम करियर काउंसलिंग के माध्यम से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि CA करने की तरफ अब अग्रसर लोग वापस होते जा रहे हैं। सर एक बढ़िया CA बनने के लिए क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं? सर मैं हमेशा ये कहता हूँ एक CA और एक अच्छे CA में भी बहुत फर्क होता है। और एक अच्छा CA जो आपने बोला कि अच्छा CA वो है ना कि जो खाली एग्जाम क्लियर करे बट ये भी समझे कि हमें किस समय में किस तरीके से जवाब देते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे लिए जब एक अच्छे CA की बात की जाती है तो अच्छा CA आज इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के से जोड़ रहा है
और हम ये नहीं कहेंगे कि खाली आप इवॉल्व करके कि फाइनेंस से बढ़ें, बट फाइनेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी ब्लेंड करके चलें। ये एक अच्छी सीए की खासियत है। अच्छा